Hey everybody, I hope everyone is doing fine. Today we're doing chapter number 7, which is programming languages, and we'll be doing things to go through. So what we will be going through is first of all program languages, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है, वो क्या होता है हम डिटेल करते हैं बात. फिर हमारे पास ट्रांसलेटर्स हैं, उसके अंदर वी हैव इंटरप्रेटर्स, कंपाइलर्स एंड असेंबलर्स, एंड देन वी हैव एरर्स which is syntax and logic errors. वो क्या होते हैं हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं. Okay, now let's start off with programming language. Programming language. Before starting, what is a programming language? So it is a set of instructions. It is a set of instructions that enables a computer to perform a specific task. It is a set of instructions which enables the computer to perform a specific task. ठीक है. अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, it can be written as HLL, which is high level language, और low level language, depending upon, अब ये किस चीज़ पर depending होता है, ये depending upon the task to be performed and the computer to be used. ठीक है, हम इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं कि सही से नज़र आ जाए. ठीक है, अच्छा, मोस्ट प्रोग्रामर्स जो मेजॉरिटी हैं वो यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज. मोस्ट प्रोग्रामर्स यूज़ हाई लेवल लैंग्वेजेस. ये जो हमारी चीज़ आके ना, ये सारी, ये हमारा आ गया इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो हमें पता चल गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का. इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच enables the computer to perform a specific task. It can be written as high level language or low level language depending upon the task to be performed and the computer to be used. इसका क्या मतलब है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेज का सर्टेन यूजेज है कि वो किस चीज़ पे यूज़ होता है, लो लेवल लैंग्वेज किस चीज़ पे यूज़ होता है, और हाई लेवल लैंग्वेज किस टाइप ऑफ कंप्यूटर पे होता है, लो लेवल लैंग्वेज किस टाइप ऑफ कंप्यूटर पे होता है, वो हम लोग अभी बात करते हैं. ठीक है, so now let's move on to our first thing, which is HLL, which is our high level language. Which is our high level language. तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं कि first of all, in high level language, the programmer does not require the knowledge of the hardware and the instructions set hardware and the instructions set to the computer. ठीक है, instructions set to the computer, ये हमारे पास बात आ गई. ठीक है, अगली चीज़, in high level language the programmer does not require the knowledge of the hardware and the instructions set to the computer. ठीक है, अब सेकेंडली जो बात है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है हमारे पास, सेकेंड बात, जो हाई लेवल लैंग्वेज है हमारी, दे आर पोर्टेबल. अब जो मैंने ऊपर बात की थी ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंड्स अपॉन the certain task to be performed and the type of computer. तो इधर बात ये होती है कि high level languages are portable and can be used on certain types of computer, on
certain types of computer and certain types of computer. अब हमारे पास क्या programs written in HLL are easier to read and understand than low level language. अब हमारे पास आगे इसकी कुछ फंडामेंटल्स बातें, ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि HLL are easier to number one read and understand then low level language. हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? low level languages. क्यों? because it is closer to the human language, या तो it is closer to the human language slash English language. ठीक है, मार्किंग स्कीम में या तो हमारा ह्यूमन यूज होता है या इंग्लिश यूज होता है. अच्छा, so because it is closer to the human slash English language, ये जो दो टर्म्स हैं ये often यूज होती हैं हमारे मार्किंग स्कीम में. So to the human language. Second चीज, it writes in a shorter time. अब हम जब writes in a shorter time कहते हैं, इसका मतलब जो हम है, जब हम writes in a shorter time बात करते हैं, this means that we're talking about the processing time. Now, thirdly, they're easier to debug at development stage. अब ये easy to debug at development stage, ठीक है, debug at development stage, and they're used by most programmers. ठीक है, तो हमने अभी बात की हाई लेवल लैंग्वेज, उसमें हमने क्या इसमें हमने क्या चीज़, पहले हमने प्रोग्रामर लैंग्वेज की बेसिस पढ़ी, फिर हमने पढ़ी हाई लेवल लैंग्वेज. उसमें हमने पढ़ा कि फर्स्टली द प्रोग्रामर डज नॉट रिक्वायर द नॉलेज ऑफ द हार्डवेयर एंड द इंस्ट्रक्शंस सेट टू द कंप्यूटर. They are portable and can be used in certain types of computer. They are easier to read and understand as it is closer to human language, writes in shorter time, debug at development state and used by most programmers. ठीक है, अब एक सबसे important बात है. अच्छा, इसकी एग्जांपल्स देख लें. इसकी एग्जांपल्स हमारे पास C++, जावा, पाइथन एक्सेट्रा, जो भी आपके पास सारी आती है ना, जावा, पाइथन एक्सेट्रा, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज के. अब हमने ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तो इसके अंदर ना आप लोग एक नोट बना लें और इसको स्टार दे दें, जो भी दे दें कि इट्स एन इम्पोर्टेंट बात. ठीक है, अब बात क्या है कि दैट द कंप्यूटर only understands in machine code. The computer only understands in machine code, so the high level language needs to be translated into machine code. ठीक है, into machine code. machine code क्या होती है? मशीन कोड लो लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल होती है और फर्दर मोर बाइनरी में होती है. ठीक है, मशीन कोड क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे. बट ये बात जहन में रखनी ज़रूरी है कि हाई लेवल लैंग्वेज को हमें हमेशा कन्वर्ट करना होगा ट्रांसलेशन में. तो अगेन जब भी आप रिविजन करेंगे तो क्विक समरी के लिए इसका एक फिगर है क्विक समरी के लिए विच विल हेल्प यू कि दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है, इसको कंपाइलर, अब वो क्या है हम सारी डिस्कस करते हैं, लेकिन ये अपने पास अभी बना लें कि इट विल हेल्प यू. सो कंपाइलर स्लैश इंटरप्रेटर वो फर्दर ट्रांसलेट होती है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर विच इज मशीन कोड. सही है, या तो वो असेंबली में भी हो सकती है और वो असेंबली से फर्दर मशीन कोड में हो जाती है. दो ऑप्शन होते हैं,
बट दिस इज हाउ द वर्किंग वर्क्स। ठीक है, ये आपके पास फिगर आ गया, बल्कि ये अच्छा नहीं बना, ये आपके पास फिगर आ गया, ये आप अपने पास रख लें। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब लो लेवल लैंग्वेज के अंदर ना, लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर हम लोग ना नोट्स इस तरह प्रिपेयर करते हैं कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन LLL एंड HLL, बिकॉज इट्स मेजॉरिटी जो है ना इट्स ऑपोजिट। हमने फर्स्टली पढ़ा कि हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड है, हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, वेयर एज अब डिफरेंसेस क्या है कि लो लेवल लैंग्वेज जो होती है इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये हमारे पास पहली डिफरेंस आ गई। ठीक है, अगली चीज हाई लेवल लैंग्वेज जो है हमारी इट एग्जीक्यूट्स, हाई लेवल लैंग्वेज जो है हमारी इट एग्जीक्यूट्स एट अ स्लोअर रेट, executes at a slower rate than LLL। एग्जाम अगर पूछ लिया why, because HLL requires a translator program, ठीक है। अच्छा, अगली चीज इन HLL इन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स हार्डवेयर एंड इंस्ट्रक्शंस नॉलेज आर नॉट रिक्वायर्ड। यही पढ़ा था हमने, इंस्ट्रक्शंस आर नॉट रिक्वायर्ड। अब लो लेवल लैंग्वेज के अंदर इट इज अ मस्ट, बट इन लो लेवल लैंग्वेज इट द नॉलेज इज मस्ट। आपको अपनी हार्डवेयर की नॉलेज और अपने इंस्ट्रक्शंस की नॉलेज मस्ट है इन लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारे पास अगली बात आ गई। फोर्थ डिफरेंस जो हमारे पास आ गया कि वही इट्स बेसिकली ऑपोजिट। हमने पढ़ा हाई लेवल लैंग्वेज आर पोर्टेबल है और वो एंड कैन बी यूज्ड ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, whereas low level languages are not portable, they are not portable and are used on specific type of computer। तो अब are used on specific type of computer। तो जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिपेंडिंग अपॉन द टास्क टू बी परफॉर्म्ड एंड कंप्यूटर टू बी यूज्ड, यही बात की थी हमने। तो ये इधर प्रूफ हो गया कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है दे आर पोर्टेबल और डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर के लिए यूज हो जाती है, वेयरएज लो लेवल लैंग्वेज आर नॉट पोर्टेबल एंड आर यूज्ड ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्यूटर। और हम यूजर्स की जब हम बात करते हैं, यूजर्स की जब हम ठीक है, यूजर्स की बात हम लोग चलो फिर हम आगे बात करते हैं जब हम लोग ट्रांसलेटर्स पे जाएंगे। ठीक है, अगली चीज है हमारे पास कि इन हाई लेवल लैंग्वेज हमने पढ़ा कि इट इज ईजियर, इन हाई लेवल लैंग्वेज it is easier to debug whereas in low level language it is difficult to debug। सही है। अगली बात हमारे पास है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है it is not memory efficient, मतलब वो ज़्यादा स्टोरेज लेती है। इसको हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो है मेमोरी एफिशिएंट। सही है, इट्स नॉट मेमोरी एफिशिएंट whereas low level language is memory efficient। ठीक है, एंड
वही जो पहला पॉइंट है ना, हम लोग ने जो लिखा कि देयर इजियर टू अंडरस्टैंड एंड वेयर एज लो लैंग्वेज आर डिफिकल्ट टू लर्न, तो उसकी दूसरी भी हम वर्डिंग इस तरह यूज कर सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज इज अ programmer friendly language whereas LLL is machine friendly language. ठीक है, ये जो मशीन इज बेसिकली कंप्यूटर, तो कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है। क्यों? कि वो बाइनरी में होती है, कंप्यूटर आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर फ्रेंडली, क्यों? क्योंकि वो प्रोग्रामर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड है। जो प्रोग्रामर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड है तो वो प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज होगी। लेकिन अब कंप्यूटर प्रोग्रामर तो ठीक है, लेकिन प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विद द कंप्यूटर, तो उसके लिए हमें लो लेवल लैंग्वेज में तभी कन्वर्ट करना होता है बिकॉज इट इज़ अ मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज, इट इज़ अ मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास आ गई तो ये हमारे पास आ गई डिफरेंसेस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू अंडरस्टैंड whereas low level language difficult to understand. High level executes at a slower rate, low level executes slower than low level because high level requires a translated program, and high level for writing program knowledge is not required, whereas it is a must to know about your hardware and instructions in low level. ठीक है, आगे फिर पॉइंट्स आप मैंने होपफुली नोट कर लिया होगा, इट्स आई होप यू अंडरस्टैंड, इट्स बेसिकली द ऑपोजिट ऑफ इट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जो हम लोग बात करने लगे, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है ना वो ख़त्म कर ली, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ख़त्म कर लिए, विच मीन्स जो हमारा टास्क था ना कि थिंग्स टू गो थ्रू, उसके अंदर हमारा पहला कवर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, so now we will talk about translators. ठीक है, so again जैसे कि मैंने बताया कि कंप्यूटर only understands binary, thus the HLL या programming languages needs to be translated into binary for the computer to understand. ठीक है, needs to convert into the binary. अब there are different types of translators, and each carries out a different task. ठीक हो गया? नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर की। सो आई वुड लाइक कि अगर आप एक टेबल बना लो तो आसानी हो जाएगी। कंपाइलर, पहले तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं कि उसका काम क्या है, और फिर हम लोग उनकी जो उनकी डिस्क्रिप्शन है ना वो हम लोग डिफरेंसेस के अंदर एक टेबल के अंदर कर लेंगे, सो इट इज़ ईजी टू समराइज एंड अंडरस्टैंड। कंपाइलर क्या करता है? ट्रांसलेट्स HLL हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। इंटरप्रेटर क्या करता है? ट्रांसलेट्स HLL इनटू मशीन कोड। अब बात इधर आ गई कि दोनों कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में। तो फर्क किधर आया? सो अब कंपाइल डिफरेंसेस हैं, दिस इज डिफरेंसेस। ठीक है, कंपाइलर इंटरप्रेटर, ठीक है, ये दो हमारे पास आ गए। पहली बात, पहला डिफरेंस कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क। पहला, जो कंपाइलर है दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करती है मशीन कोड में। फर्स्ट थिंग मींस कंपाइलर scans
entirely the program at once. Entirely scans entirely the program at once. नंबर वन, स्कैन कंपाइलर क्या करती है, एक पूरा प्रोग्राम को एट वंस स्कैन कर लेती है एंटायरली. Whereas interpreter scans statement by statement by statement. ठीक है. अगली चीज, in compiler an executable file of machine code is produced. executable को हम लोग एज अ शॉर्ट फॉर्म इस तरह लिखते हैं, executable file of machine code is produced. In interpreter no executable बल्कि इसकी ना ब्रैकेट्स की भी जरूरत, no executable file is required, या बल्कि no executable file is required की जगह a better wording is no executable file is produced. No executable file is produced. Third बात, पहली बात, compiler scans entirely the program at once, whereas interpreter scans the program statement by statement. Compiler, at the end of the program an executable file of machine code is produced in compiler, whereas in interpreter no executable file is produced. Third बात, thirdly, अब ये बात और सुनना कि compilers can be used without compiler, whereas interpreted programs cannot be used without an interpreter. इसका मतलब क्या है कि once a program is compiled, the machine code can be used again and again to perform the same task without recompilation. ठीक है. तो compiler के अंदर बात क्या आ गई कि they can be used without the compiler. ठीक है, एक दफा हो गया फिर कंपाइलर की जरूरत नहीं है, रिकम्पाइलेशन की जरूरत नहीं है, प्रोग्राम बार बार हो सकते हैं. Whereas in interpreter it cannot be used without interpreter. ठीक है, काम दोनों सेम करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को उठा के मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देते हैं, बट उनका मेथड जो है, तरीका जो है, दैट इज डिफरेंट. ठीक है. अगली बात ये है कि comparatively compiler is faster than interpreter. Comparatively faster than interpreter, and this is slower than compiler. एग्जीक्यूशन टाइम की बात हो रही है. ठीक है. इसकी रीजन क्या, अगर एग्जाम में पूछ ले इसकी रीजन क्या है, because ये लिख लेना अपने पास, because compiler scans entirely the program at once, so it is faster, whereas interpreter statement by statement करता है तो उसे टाइम लगता है. ठीक हो गया. अब फिफ्थली बात ये है, अगली बात ये है कि एक मिनट, मेरा आई थिंक कि मेरा टैबलेट डिस्कनेक्ट हो गया. अच्छा, फिफ्थली जो बात है, फिफ्थ पॉइंट जो है कि इट इज़ यूज्ड फॉर जनरल यूज. इसका जो यूज है वो जनरल यूज है. ठीक है, जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग कोई भी करनी है उसकी जनरल यूज है. whereas compilers are often distributed, इसको हम लोग लिखेंगे किस तरह कि compilers are often distributed for general uses, whereas interpreter is distributed when a program is being developed. So program development में यूज होता है, ये इसका यूज आ गया. ठीक है, ये प्रोग्राम डेवलपमेंट और वो जनरल यूज है. ठीक है. अगला पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगला पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. तो अगला पॉइंट हमारे पास है कि अब होता क्या है, हमने कहा कि स्कैन्स एंटायरली एट द एंड ऑफ द
प्रोग्राम। लेकिन अगर उसके अंदर कोई एरर आ जाए तब क्या होगा? तब होगा ये, अगर कोई एरर आ जाए तो होगा ये कि कंपाइलर विल जनरेट एन लिस्ट ऑफ एरर या एन एरर रिपोर्ट एट द एंड ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द एंटायर प्रोग्राम एंड नथिंग विल बी ट्रांसलेटेड। जो ट्रांसलेशन के एंड में कोई चीज़ ट्रांसलेट नहीं होगी, सिर्फ लिस्ट ऑफ एरर्स आ जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि एरर रिपोर्ट will be generated at the end of the program, at the end of the translation, ठीक है। अब अगर आपने अपने पॉइंट सारे एक दफा रिपीट करें तो उसके अंदर पहला पॉइंट क्या है कि इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है। तो इसका मतलब जब वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करेगा, किसी भी स्टेटमेंट के अंदर जैसे ही कोई एरर डिटेक्ट होगा, जैसे ही कोई एरर डिटेक्ट होगी, ट्रांसलेशन प्रोसेस रुक जाएगा। और जैसे किस तरह रुकेगा? एज सून एज द फर्स्ट एरर इज एनकाउंटर्ड, ठीक है। स्टॉप्स, तो इसके अंदर क्या है कि स्टॉप्स ट्रांसलेशन as soon as first error is encountered। तो उसके अंदर लिस्ट नहीं बनेगी, एक लिस्ट नहीं बनेगी। as soon as the first error is encountered, जो हमारा ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो स्टॉप कर देगा और वो बता देगा कि जी प्रोग्रामर को कि ये एरर आया, प्रोग्रामर इसको फिक्स करेगा एंड इट विल कंटिन्यू। इसके अंदर यह है कि प्रोग्रामर को पता नहीं है जब तक वो पूरा स्कैन होगा और एट द एंड में एरर रिपोर्ट आ जाएगी, वेयरएज इसमें स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। अब हमने कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर की बात कर ली, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और पॉइंट्स देखो, ठीक है। ये मार्किंग स्कीम के पॉइंट्स हैं, तो इसके अंदर लिख लेना कि दीज आर मार्किंग स्कीम पॉइंट्स, फर्दर एडिशनल पॉइंट्स है जो मार्किंग स्कीम में यूज आएंगे। कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन कंपाइलर डीबगिंग इज मोर डिफिकल्ट। ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए थे कि डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं दे आर 100% करेक्ट, बट उसमें अंदर कुछ नए पॉइंट्स भी हैं जो आई वुड प्रेफर आप लोग लिख लो। सो अगेन इस तरह नहीं कहेगा कि 7 आप अपने, इस तरह कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें 7 डिफरेंसेस आपने मेंशन कर दिए और 3, 4, 5 मार्क्स का आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इट इज़ बेटर कि आप लिख लो कि डीबगिंग इज़ मोर डिफ़िकल्ट, और इसकी रीजनिंग भी वही है, रीजनिंग उसकी वही है, जबकि रीजनिंग वो पूछता नहीं है, बट इट्स बेटर टू नो कि रीजनिंग उसकी सेम है कि वो एंटायरली स्कैन करता है, जबकि ये करता है स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, ठीक है। अगला पॉइंट ये भी मार्किंग स्कीम से ही है कि अच्छा एक और चीज, वाई इजी बिकॉज ईच लाइन ऑफ कोड, वाई, अच्छा इसमें नीचे लिख लो वाई बिकॉज ईच लाइन इज एनालाइज्ड एंड चेक्ड बिफोर एग्जीक्यूशन, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, कोई भी मसला हो या कोई भी एरर हो तो वो स्टॉप करके आपको बता देता है, तो वो ईच लाइन में होता है, उसके डीबगिंग करना आसान होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, कंपाइलर इज मोर लाइकली टू क्रैश, why is it? Because as machine code is directly running on CPU, on the CPU, ठीक है। अब इसका पॉइंट क्या है हमारे पास अगला कि it is say whereas less likely to crash on interpreter, अच्छा इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो ऑफन इस तरह आते हैं कि आपके पास टेबल होगा, आपने टिक करना है स्टेटमेंट्स वाइज, तो ये आपको पास याद रखनी जरूरी है। तो अब हमारे पास सारे कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर के फर्क आ गए। क्या है डिफरेंसेस बिटवीन
कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड, ये करते हैं। सिमिलरली इंटरप्रेटर भी सेम काम करता है। डिफरेंसेस के, कंपाइलर्स कैन एंटायरली द प्रोग्राम एट वंस, इंटरप्रेटर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। कंपाइलर में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल प्रोड्यूस होती है, इंटरप्रेटर में नहीं होती। कंपाइलर के बगैर भी रन हो सकता है, जबकि इंटरप्रेटर के बगैर रन नहीं हो सकता। एग्जीक्यूशन टाइम कंपाइलर की तेज है एज कम्पेयर टू इंटरप्रेटर, एंड इंटरप्रेटर इज स्लोअर। कंपाइलर का जो यूज है वो जनरल यूज है, वेयरएज इंटरप्रेटर का यूज प्रोग्राम डेवलपमेंट में है। कंपाइलर में जो एरर रिपोर्ट है वो एट द एंड ऑफ द ट्रांसलेशन जनरेट होगी, जबकि इंटरप्रेटर में एज सून एज द फर्स्ट एरर इज एनकाउंटर्ड वो स्टॉप कर देगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट रीड करता है। मार्किंग स्कीम से दो एडिशनल पॉइंट्स जो हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल डीबगिंग इज मोर डिफिकल्ट in compiler, whereas in interpreter debugging is easy. Why? Because each line is analyzed and checked before execution. Point 8, more likely to crash. Compiler is more likely to crash, whereas interpreter is less likely to crash. Why? Because compiler in compiler the machine code is directly running on the CPU. ठीक हो गया? Because in compiler directly running on the CPU. ठीक है? अब हमने इंटरप्रेटर की बात कर ली, कंपाइलर की बात कर ली, ठीक है। नाउ अब हमारे पास बात आती है असेंबलर्स की। ठीक है, असेंबलर्स क्या काम करते हैं। अब हमारे पास आ गई, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसलेशन, इसको अच्छा, अब हमारे पास आई असेंबलर। अच्छा, असेंबलर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबलर क्या है, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब असेंबलर से पहले हमने बात की थी लो लेवल लैंग्वेजेस के, हमने डिफरेंसेस बताए थे, लेकिन हमने ये नहीं बात की कि लो लेवल लैंग्वेज की दो किस्म की होती हैं। ये मैंने क्यों नहीं बताया पहले, बिकॉज आई वांटेड कि मैं इसी के साथ लिंक कर दूं, ठीक है। तो इधर साइड पे टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज, पहले ये लिखना ज़रूरी है। फर्स्ट है हमारे पास असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं कि फर्स्टली टाइप ऑफ लो लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर स्पेसिफिक टू पार्टिकुलर आर्किटेक्चर, ठीक है। असेंबली, अच्छा इसमें बस पॉइंट ये लिख लो कि असेंबली लैंग्वेज नीड्स टू बी ट्रांसलेटेड into machine code via the assembler। जो हम अभी बात करने लगे ट्रांसलेटर की, assembler से ट्रांसलेट होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट 1 है। दूसरा है इट इज़ ईजियर टू राइट देन मशीन कोड। इसीलिए अगर कोई प्रोग्रामर यूज़ करता है ना, तो वो लो लेवल लैंग्वेज, अव्वल तो हाई लेवल लैंग्वेज इज प्रेफर्ड, लेकिन अगर वो लो लेवल में यूज़ करता है तो वो मशीन कोड से ज़्यादा वो असेंबली लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इट्स अ लिटिल बिट इजियर टू अंडरस्टैंड। अब बात ये है, क्वेश्चन आया एग्जाम में, लेट्स से बहुत क्वेश्चन आया कि व्हाई डज अ प्रोग्रामर यूज एन असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो कुछ रीजनिंग्स हैं हमारे पास जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ यार इस रीज़न की वजह से हम लोगों के साथ ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्टली फॉर द फॉलोइंग रीजंस हैं, ठीक है। फर्स्टली टू यूटिलाइज स्पेशल हार्डवेयर। इसका क्या मतलब है, बिकॉज एज यू मैंशन कि स्पेसिफिक हार्डवेयर और कंप्यूटर यूज होता है इन लो लेवल लैंग्वेजेस, ये आपको बात पता है, ठीक है। अगली चीज, टू यूटिलाइज स्पेशल मशीन डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस। ये क्या बात आ गई कि हमें पता है कि वो स्पेसिफिक कंप्यूटर स्पेसिफिक आर्किटेक्चर यूज करता है, तो टू यूटिलाइज स्पेशल
machine dependent instruction, machine dependent instructions। अगली बात हमारे पास जो हमने पहले मेंशन की थी डिफरेंसेस इन लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में, कि टू सेव स्पेस इन प्राइमरी स्टोरेज एज कोड रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज इज मेमोरी एफिशिएंट। ठीक है, सो अगला रीजन क्यों यूज कर सकते हैं, ये इसलिए यूज कर सकते हैं टू सेव मेमोरी इन प्राइमरी स्टोरेज। इन प्राइमरी स्टोरेज देखो, अगर स्टेट कर दिया तो प्राइमरी स्टोरेज तक ही काफ़ी है, लेकिन अगर एक्सप्लेन का कह दिया तो उसको लिंक करना ज़रूरी है। क्यों? एज लो लेवल लैंग्वेज इज मेमोरी एफिशिएंट। अच्छा, अपने पास एक नोट भी बना लें कि एग्जामिनर या तो स्टेट मेंशन करता है या तो डिस्क्राइब मेंशन करता है। जब स्टेट करेगा ना, जब वो कहेगा ना कि स्टेट करो, तो उसके अंदर आपने सिर्फ ये पॉइंट भी लिख दिया टू यूटिलाइज स्पेशल मशीन टू सेव मेमोरी इन प्राइमरी स्टोरेज, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन जब आप बात करोगे क्या लो लेवल लैंग्वेज, अगर वो कहे डिस्क्राइब टू सेव मेमोरी इन प्राइमरी स्टोरेज, दैट्स जस्ट वन पॉइंट, दैट्स जस्ट वन मार्क। क्यों? बिकॉज एज लो लेवल लैंग्वेज इज मेमोरी एफिशिएंट, दैट्स अनदर मार्क। ठीक है, तो ये बस सिर्फ बता दें। ओके, नाउ अगला, टू राइट अ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, to write a code that performs quickly। ठीक है, to write a code that performs quickly। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो लो लेवल लैंग्वेज से थोड़ा आसान होता है मशीन कोड में ट्रांसलेट करना, वेयर एज इन हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये हमारे पास आ गया व्हाई डज अ प्रोग्रामर यूजेस एन असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और एक और चीज़, असेंबली लैंग्वेज की रिप्रेजेंटेशन देख लो, रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एग्जाम में अक्सर आता है, बताओ ये मशीन कोड में है, ये असेंबली लैंग्वेज में, तो इसमें रिप्रेजेंटेशन क्या है? LDA ADD STO, दिस इज व्हाट फर्स्ट नंबर। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हमारे पास है कि दो सम है, दो नंबर्स इनको ऐड करना है, तो ये फर्स्ट नंबर आ गया, ये नंबर सेकंड नंबर आ गया, ये सेकंड नंबर आ गया, और ये इसकी सम आ गई। ठीक है, सो दिस इज आवर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस पे एग्जाम पे क्वेश्चन आए हुए हैं कि बताओ इनमें से असेंबली कौन सा है, इसमें मशीन कोड कौन सी। ठीक है, ये हमारे पास आ गई पहली टाइप। दूसरी टाइप हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज की, वो है मशीन कोड। मशीन कोड इज जिसमें कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, लो लेवल लैंग्वेज है सेकेंड टाइप। अब मशीन कोड की सिर्फ दो पॉइंट्स की डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, मशीन कोड अगर एग्जाम में आ गई तो इट इज़ बाइनरी। ठीक है, उसकी कभी भी आएगा कि इसकी रिप्रेजेंटेशन तो हमेशा बाइनरी में होगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी में, और हमें ये पता है कि कंप्यूटर मशीन कोड अंडरस्टैंड करता है, तो मशीन कोड क्या होगी? बाइनरी होगी। इट्स वेरी ऑब्वियस। क्या है? इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय द प्रोग्रामर्स। इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड by the programmers, therefore programmers don't write in machine code, usually don't write in machine code, it's not preferred। ठीक है, क्यों? एक और रीज़न है कि as it is difficult not to only understand, to manage storage and data manipulation, that's another reason, storage and data manipulation। ठीक है, अब ये जो हमने बातें की है ना, ये हमारे पास आगे लो लेवल लैंग्वेजेस की टाइप्स, ये मैंने इसलिए बताई कि इसकी ज़रूरी है, यू शुड नो देम, और फिर हम, क्योंकि फिर उसके आगे हम लोग असेंबलर की बात करें। दिस इज टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू असेंबलर। जो हम लोग बात कर रहे थे ना, उसको कंटिन्यू करते हैं, असेंबलर। ठीक है, alright, now we are on assembler। assembler is the third type of translator। assembler क्या करता है? it is a program that translates assembly language into machine code so that it can be used by computer directly,
ठीक है। अब इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है, इसकी, सो लेट्स राइट दैट। फर्स्टली an assembler produces an executable file of machine code, secondly can be used without assembler, अगेन कंपाइलर वाली बात है, कैन बी यूज्ड विदाउट असेंबलर, एंड वही कंपाइलर वाली उसकी कैपेबिलिटी है कि इट प्रोड्यूसेस एन एग्जीक्यूटेबल फाइल विदाउट असेंबलर, ठीक है। अब ये पॉइंट जरा सुने कि वन low level language is usually translated into one machine code, अब इसमें बात कहाँ है, मेन बात कहाँ है इसमें कि ये जो मेन बात है वो है whereas in compiler ये differences है, ठीक है। ये आप लोग इस तरह भी इसको यूज कर सकते हो, similarities and differences between assembler and compiler. Whereas in compiler one high level language is usually translated into several machine code instructions, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हमने क्या कहते हैं, एक आखिरी पॉइंट इसका लिख लें, कि प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम, हम असेंबलर की बात कर रहे हैं कि प्रोग्राम इज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर जनरल यूज। तो बेसिकली अगर आप इसको कंपाइलर से कंपेयर करें तो मेजॉरिटी बातें सेम हैं, सिर्फ एक फर्क ये है कि वन लो लेवल लैंग्वेज इज यूजुअली ट्रांसलेटेड इनटू वन मशीन कोड, whereas in compiler one high level language is usually translated into several machine code instructions, ठीक हो गया। now अब एक दफ़ा I would like to go, अच्छा ये हमारे पास assembler भी हो गया, types of low level languages, differences between compiler and interpreter, translators, low level language, high level language, और जब हमने शुरू में बात की थी थिंग्स टू गो थ्रू में, तो ट्रांसलेटर्स हमारे सारे हो गए, एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद एरर्स भी मूव ऑन करते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट थिंग व्हिच इज errors. अब errors कौन से हैं? So we have syntax and logic. अब ये क्या है बताते हैं। Syntax क्या है कि it is when a program is being compiled and there are errors, so no translated program is produced. Instead, a list of errors in the whole program is produced. In interpreted program, as it translates line by line, if an error is detected, it is alerted to the programmer. The error is corrected by the programmer and the process continues until the next error took place or the task is completed. तो ये बात मैंने आपको पहले भी कहा थी जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था इंटरप्रेटर और कंपाइलर के अंदर कि एट द एंड हमने ये बात की थी कि एट द एंड एक एरर रिपोर्ट जनरेट होती है कंपाइलर में, और इंटरप्रेटर में it will stop as soon as the first error is encountered. अब ये जो होता है ना एरर, इस टाइप ऑफ एरर को हम सिंटेक्स कहते हैं। बस इतनी सी बात है कि जब हम इस टाइप ऑफ एरर की जब बात कर रहे हैं उसे हम लोग सिंटेक्स कहते हैं। तो सिंटेक्स क्या है कि
व्हेन अ प्रोग्राम इज बीइंग कंपाइल्ड, हम कंपाइल की बात कर रहे हैं कि व्हेन अ प्रोग्राम इज बीइंग कंपाइल्ड and an error and there are errors no translated program is produced, मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता. प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड मतलब बाइनरी वैल्यू कोई भी नहीं आती, मशीन कोड में ट्रांसलेट नहीं होता. इंस्टेड a list of errors is generated, a list of errors in the whole program, मतलब जितने भी मसले हैं वो एक साथ ही एड्रेस कर देते हैं कि in the whole program is produced. ठीक है, मतलब ट्रांसलेशन प्रोग्राम की जगह एक लिस्ट ऑफ एरर होल प्रोग्राम में प्रोड्यूस हो जाता है. एंड इन इंटरप्रेटेड प्रोग्राम्स, ये हमारे पास आ गया कंपाइल में. अब हम बता रहे हैं इन interpreted programs as it translates line by line, again ये कोई नई बातें नहीं, हमने सारा पढ़ के आगे हैं. as it translates line by line, if an error is detected, if any error is detected, it is alerted to the programmer. The error is corrected. And the process continues. Until a new error is detected or the task is completed. ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया सिंटेक्स एरर. दिस इज आवर लास्ट थिंग. और फिर हमारे पास लॉजिक है. लॉजिक बहुत सिंपल सी बात है. लॉजिक की जब हम बात करते हैं बहुत सिंपल सी बात है हमारे पास लॉजिक के अंदर. अच्छा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिक. दिस इज आवर सेकंड. लॉजिक में क्या है कि व्हेन अ प्रोग्राम रन्स and it does not know what to do, it is known as a logic error. सिंपल सी बात है. क्या है कि when a program runs and the instructions are not clear, when a program is run and the program doesn't know what to do, this is also known as logic error. ठीक है जी. Alright, so we are done with everything. हमने प्रोग्राम लैंग्वेजेस हाई लेवल लो लेवल को डिस्कस किया, ट्रांसलेटर्स को डिस्कस किया और एरर्स को डिस्कस किया. So this was it for today's class. See you the next time. Thank you so much for watching.